Okay then, let's start. So flip-flop topic, I suppose it is clear to you. In flip-flop, we have already seen RS flip-flop, JK flip-flop, clocked RS, clock JK. Then with preset and clear, and then we have thrown a light on race around condition, why it occurs, how to get a remedy for race around condition. That is, we come up with the next flip-flop, that is MSJK, master slave JK flip-flop. So now comes the application of flip-flop. So the next topic that we are taking now is a shift register. Now what is shift register? Actually, when we say a flip-flop, it's just a 1-bit memory cell. Now we want to store a multiple bits, maybe 4-bit, 5-bit, 6-bit, 8-bit, like that. So in order to do that, we need to cascade such flip-flop. Means if this flip-flop is there, okay, let's say any JK or anything, so it can store only a single bit of information. Either you can say Q or something Q bar, whatever it may be. But if you want to store a 2-bit, you will require one more flip-flop. So how to cascade that? For that, cascading such thing for a number of bits of, you can say, memory, you will require a concept that is a register. So register is nothing but we can say where a multiple memory cell are there, each of flip-flops contributing to each 1 bit, and to how many bits you require, you will have to add so many flip-flops. Suppose here it has been shown for 4 bit. We can say this is a 1 bit, this is another 1 bit, this is another 1 bit, and this is another. Now, in order of their operation, these are classified into 4 categories. One is the way we are inputting and the way we take the output. So how to input? So input we can do either serially or parallelly. Similarly, output we can do serially or parallelly. So depending on that, we have come with 4 types, that is SISO, that is serial in, serial output. So here the inputting is in a serial way and we are taking the output also serially. Then the next case will be SIPO, that is serial input and parallel output. Next will be parallel input and its 2 types, that is serial input, parallel in and serial output. And the last type will be parallel out. Yeah, serial and parallel are 2 variables, so 4 possibilities will be there, isn't it? 0 0 0 1 1 0 1 1. इस टाइप से जैसे चलते हैं उसी टाइप से serial in serial output, serial in parallel output, parallel in serial output और parallel in parallel output. अब ये किस तरीके से होता है, अगर इस तरीके से सोचेंगे तो एक demonstratively this diagram is shown कि in this flip flop when such register is there, देखो आप अपने रजिस्टर से कंपेल करो कि आपका जो नोट्स का बुक होता है, रजिस्टर बोलते हैं उसको, तो रजिस्टर ये कई पेजेस से बनता है, बराबर है, उसमें कई पेजेस रहते हैं तो वो रजिस्टर बनता है, और हर पेज ये कई लाइन से बनता है और हर लाइन में आप कुछ कैरेक्टर लिखते हैं. जब एक कैरेक्टर लिखते हैं ना, ऐसा समझो कि आपका एक फ्लिप फ्लॉप, ऐसे ये कई लाइंस लिखते तो ये एक एक रजिस्टर हो गए ये, और ये कंप्लीट पेज यानी कि मेमोरी, और ऐसे कई मेमोरीज यानी कंप्लीट आपका जो रजिस्टर बनता है वैसे कई मेमोरीज रह सकते हैं. इसका मतलब जब मेमोरी करके आप जब मार्केट से लेते हैं तो उस मेमोरी में कई लोकेशन होते हैं कि जैसे फर्स्ट लोकेशन पे ये इतने सारे बीट आप स्टोर कर सकते हैं, नेक्स्ट लोकेशन पे ये आप कुछ और स्टोर कर सकते हैं. ऐसे करते करते जितने लोकेशन रहेंगे उसमें उतने रजिस्टर रहेंगे, तो इसका मतलब कई रजिस्टर का कॉम्बिनेशन यानी मेमोरी होता है. ठीक है, तो मेमोरी की जो आईसी आती है उसमें कई रजिस्टर रहते हैं और हर रजिस्टर का एक साइज होता है, 4 बिट का है या 8 बिट का है, लाइक दैट. सो इन दैट in the way of data transfer, we are classifying this shift register into 4 types, that is serial in, serial out, serial in, parallel out, parallel in, serial out. This can be very well explained in this diagram.
where like here you can see this is a serial output, means we are inputting serially and also we are taking the data serial. Whereas in this second diagram, if you see, the data we are entering serially, but the output we are taking all the data 4 bits parallelly, all 4 at a time. जबकि सीरियल में 1 by जाएगा, क्योंकि शिफ्ट हो रहा है एक के बाद शिफ्ट होते हुए ये 4 बार जब तक शिफ्ट नहीं करेंगे, यहाँ जो दिया हुआ डेटा यहाँ नहीं आएगा। जबकि पैरेलली क्या होगा कि 4 बार यहाँ पूरा डेटा आ गया कि उसी टाइम पे आपको पूरा डेटा अवेलेबल हो जाता है। फिर थर्ड केस ऐसा है, यहाँ पे डेटा इनपुट ही पैरेलली किया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पैरेलली डेटा इनपुट किया है, मतलब चारों बीट एट अ टाइम एंटर कर रहे हैं, पैरेलल इनपुट, और डेटा लेते वक्त आपने पैरेलली लिया है, सॉरी सीरियली लिया है यहाँ पे, तो ये पैरेलल इन सीरियल आउटपुट है। और आपका लास्ट आप बोल सकते कि डेटा इनपुट भी जो किया है वो पैरेलली है और आउटपुट जो किया है पैरेलली। इस टाइप से सीसो, सीपो, पीसो और पीपो, ऐसा PIPO, इस टाइप से आपको अलग अलग टाइप्स समझ में आएंगे। ठीक है, सो लेट अस कम टू द एक्चुअल डायग्राम। अब हम थोड़ा सा एक्चुअल डायग्राम देखते हैं। एक्चुअल डायग्राम के लिए अपन क्या करेंगे, आई विल स्टार्ट विथ फर्स्ट सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, शिफ्ट रजिस्टर, एंड विल टेक एन एग्जांपल फॉर लेट्स से 4 बिट। सो दिस इज फॉर सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट। इसमें बहुत ज्यादा चीजें समझने की कुछ भी नहीं है, लेकिन द कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप देख रहे हैं कि जब सीरियल इनपुट करना है तो किसी तो भी एक एंड से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ लिखा है सीरियल इनपुट यहाँ पे, और ये इधर साइड सीरियल आउटपुट लिखा है। अब जब सीरियल इनपुट करना है, और अब यहाँ पे LSB MSB आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसे मान के चलो कि ये आपका इसको D0 Q0, D1 Q1, yes, D2 Q2 और ये D3 Q3। अब हमेशा जब डेटा शिफ्ट करना है तो पहले MSB करेंगे, यानी सपोज मुझे डेटा शिफ्ट करना है 1011, तो इसमें MSB क्या रहेगा बताओ? हमको डेटा जो शिफ्ट करना है वो इस तरीके से Q3 Q2 Q1 Q0, तो ये MSB है, दिस इज MSB। सो MSB नीड्स टू बी शिफ्टेड फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या कर दिए, शिफ्ट रजिस्टर या इसके बाद जो काउंटर, ये शिफ्ट रजिस्टर जो है ये ऑल दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मींस ऑल द क्लॉक्स आर मेड कॉमन। आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी के क्लॉक कॉमन कर दिया है। कैन यू सी दिस, ए क्लॉक इज कॉमन टू ऑल दिस थिंग्स। इसका मतलब जब तक कि क्लॉक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक डेटा लैच नहीं होगा। आया ध्यान में आपके? तो सबसे पहला जब भी डेटा शिफ्ट करना हो तो सबसे पहला काम क्या रहता है, तो क्लियरिंग दी कंटेंट, क्लियरिंग दी कंटेंट। फॉर दैट क्या करते हैं हम, मोमेंटरीली वी कनेक्ट ए लो टू क्लियर। यहां दिखाया नहीं है लेकिन ऐसे मान के चलो, मैं यहां बना रहा हूं लगे तो, कि यहाँ पे क्लियर है और ये सभी कॉमन है, लो एक्टिव क्लियर है और ये कॉमन है, और इसको नाम दे दिया CLR लो एक्टिव। प्रीसेट भी रह सकता है। तो क्लियर को जैसे ही लो देते हैं तो हमको मालूम है क्या होता है, सभी का कंटेंट 0 हो जाएगा, यानी क्या होगा, Q3 Q2 Q1 Q0 सभी 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये इनिशियली क्योंकि हमने क्या दिया है, क्लियर इक्वल टू लो दिया है। मोमेंटरीली थोड़ी देर के लिए हमने उसको इस तरीके की पल्स दिया है, लो दे दिया है, तो ये क्लियर हो गया। अब पहले क्लॉक के साथ हम क्या करेंगे, क्लॉक फर्स्ट, जैसे ही क्लॉक आ रहा है उसमें हम लोग सबसे पहले MSB देंगे। तो MSB हमारे को देना है 1, तो हम यहाँ इसको दे देंगे, यहाँ पे यहाँ 1 रखेंगे। यहाँ 1 रखा है मतलब ऐसा हाई करके रख दिया आप। अब जैसे ही क्लॉक हाई आ गई तो ये डेटा लैच होगा, मतलब यहाँ पे 1 अवेलेबल रहेगा। जैसे ही सबको क्लॉक मिलने से क्या होगा, देखो यहां जो था वो यहां आ जाएगा, यहां जो था वो यहां आ जाएगा, यहां जो था यहां आ जाएगा, और यहां जो है वो यहां आ जाएगा। अब देखते हैं कि कहा क्या था। सबसे पहले क्या था, सब थे 0, ये सब थे
ये 0 था, ये 0 था, ये 0 था, ये 0 था। जैसे ही हमने पहला क्लॉक दिया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 इधर आ गया, ये 0 इधर आ गया और ये 0 इधर आ गया। तो इसका मतलब पहले क्लॉक के साथ क्या हुआ देखो तो सही, कि हमारा यहाँ पे 1 आ गया, इधर सब के सब 0 ही है, क्योंकि ये शिफ्ट हो रहे हैं। कैसे शिफ्ट हो रहे हैं? इस तरीके से ये शिफ्ट हो रहे हैं, ये शिफ्ट हो रहे हैं, और ये हमने एंट्री किया है डी से, ये एंट्री किया है। नेक्स्ट क्लॉक में क्या होगा बताइए? मैं अब क्या दे रहा हूं उस पर भी बता देता हूं। नेक्स्ट क्लॉक में मैं दे रहा हूं 0, अब 0 दे रहा हूं, यहाँ पे रख दिया है मैंने 0। अब बताओ क्या होगा नेक्स्ट इसमें? ये देखो, ये तो पहले यहाँ का डेटा यहाँ आ जाएगा, यहाँ का डेटा यहाँ आ जाएगा, यहाँ का डेटा यहाँ आ जाएगा। मतलब जो Q0 में 1 था, पहले तो ये शिफ्ट कर दो, एक 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 शिफ्ट कर दो, तो ये 0 बाहर गया, ये वाला इधर 0 आया, ये वाला इधर 0 आया, ये 1 इधर आया, और नया डेटा जो आपने डाला है वो यहाँ आ गया। आपने नया डेटा क्या डाला है? ये वाला सेकंड 0। यस, अब क्लॉक थर्ड देते वक्त आप डेटा क्या रख रहे हैं? अब नेक्स्ट 1 रख रहे हैं। तो ये एक एक, जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक हाई आएगी, ये एक एक शिफ्ट शुरू हो जाएगा, शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 0 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, और नया वाला डेटा आपने ये दिया है 1, वो यहाँ 1 आ गया। और नेक्स्ट क्लॉक में आप देना चाह रहे हैं, आपका बचा है अब ये वाला 1। तो जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक आता है, ये एक एक शिफ्ट हो रहा है, यहाँ आ गया 1, ये आ गया 0, ये आ गया यहाँ पे 1, और नया वाला डेटा दे दिया आपने 1। ठीक है, तो अब ये डेटा बन गया 1011। यही तो चाह रहे थे ना आप, 1011, यही चाह रहे थे। अभी यहाँ पे डेटा अवेलेबल हो गया है, कैसे 1011? आप देखो यहाँ हो गया है 1011, क्योंकि MSB इधर है आपका राइट हैंड साइड में, बराबर है। यहाँ 1011। अब आपको रीड करना है, ये हो गया डेटा इनपुटिंग, ये डेटा राइटिंग हो गया, ये हो गया इनपुटिंग, राइटिंग हो गया, यानी कि राइट करना हो गया। अब आप रीड करना चाह रहे हैं या आउटपुट करना चाह रहे हैं, तो देयर आर 2 वेज, सीरियली या पैरेलली। तो अब यहां से आप डेटा एक एक लेंगे। तो उसी समय आपको LSB यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे LSB मिल रहा है आपको 1। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉक के साथ आप जब रीड कर रहे तो 1, फिर एक और क्लॉक दिया तो ये शिफ्ट होके यहाँ 0 आएगा, ये इधर आएगा 0, एक और शिफ्ट किया तो ये 1 आएगा, और एक और शिफ्ट किया तो ये नेक्स्ट 1। इसका क्या मतलब हो रहा है कि इफ देयर आर n बीट रजिस्टर, इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर n बिट रजिस्टर है तो n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स लगते हैं विच आर कैस्केडेड। अगर सीरियल इनपुट कर रहे हैं तो आपको n क्लॉक आर रिक्वायर्ड। इट्स लाइक ए राइटिंग, क्योंकि मेमोरी के वक्त ऐसे वर्ड यूज करते हैं, राइट एंड रीड। और आप जब सपोज सीरियल आउटपुट करना चाह रहे हैं तो आपको अगेन n क्लॉक्स आर रिक्वायर्ड। इसका एक ही मतलब है, ये हो गया आपका रीडिंग। इसका एक ही मतलब है कि अगर n बिट शिफ्ट रजिस्टर है तो सीसो में आपको 2 क्लॉक्स लगते हैं। तो ये थोड़ा स्लो होगा कि नहीं? रीडिंग एंड राइटिंग आपको इतने सारे क्लॉक पीरियड रुकना पड़ेगा कि नहीं? 4 बिट है तो 4 क्लॉक लगेंगे राइटिंग के लिए और 4 क्लॉक रहेंगे रीडिंग के लिए। सो हैव यू गॉट दिस आइडिया? सीरियल इन सीरियल आउटपुट कैसे होता है, कैसे एंट्री कर रहे हैं। अगर एक आधा आपको ये मिल रहा हो टाइमिंग डायग्राम, तो मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, उसको टाइमिंग डायग्राम से उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे ये देखते हैं, ये एक अच्छा डायग्राम है। यहाँ डेटा इनपुट दिखाया है D0 से, फिर D1, फिर D2, फिर D3, बराबर है। ईच क्लॉक के साथ यहाँ पे डेटा एंट्री कर रहे हैं 1 0 1 0। ठीक है, एक एक डेटा शिफ्ट हो रहा है। पहले 1 आया Q0 में, वही 1 एक एक शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देखते हैं हर क्लॉक के साथ वो शिफ्ट हो रहा है। ऐसे करते करते 4 क्लॉक में वो इस जगह पे आता है MSB में। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 0 1 0 जब शिफ्ट करना था तो ये पहला 1 जो है, ये जब हम D0 से दिए तो ये ट्रेवल करते करते यहाँ पे आया है। 1 के बाद जब 0 दिया
तो वो 0 यहाँ जो दिया वो इधर शिफ्ट हो रहा है, फिर वो शिफ्ट हो रहा है, फिर वो यहाँ शिफ्ट हो गया। आ गया ध्यान में? इसके बाद का इसी तरीके से ये आ गया, ये इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया। लाइक दिस इट गोज ऑन। जैसे ये 0 है, यहाँ 0 है, और एट द एंड ऑफ द 4th क्लॉक अगर आप अब पोजीशन कहाँ देखोगे, आप यहाँ देखना, यहाँ देखोगे, और क्या देखोगे आप देखना Q3, Q2, Q1 और Q0 के कंटेंट क्या है। Q3 कितना है इस टाइम पे? Q3 कितना है? 1। Q2 कितना है? 0। Q1 1 और Q0 0। यस। तो हमको ये जो 1010 ही हम ट्रांसफर करना चाह रहे थे यहाँ पे, लेकिन हमको 4 क्लॉक टाइम लग गया। ये 4 क्लॉक टाइम लग गया, ये 1, ये 2, 3 और ये 4। मतलब एक्चुअली क्लॉक बोले तो हम ये पूरा टाइम पकड़ना चाहिए, इतना से इतना। ये 1 क्लॉक का टाइम, फिर ये नेक्स्ट क्लॉक का टाइम, फिर ये नेक्स्ट क्लॉक का टाइम, और इस तरीके से चौथा क्लॉक का टाइम। 4T हमको वेट करना पड़ता है सीरियल इनपुट करने के लिए। अगर यही यहां से डेटा रीड करना चाह रहा हूं मैं एक ही आउटपुट से, मतलब इस जगह से सीरियल आउटपुट ही लेना है मुझे, तो फिर से मुझे 4 क्लॉक एक शिफ्ट करना पड़ता है। आ रहा है क्या आपके ध्यान में टाइमिंग के साथ में? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, हाउ वी आर entering the data. First we are entering a single bit MSB, then the next bit, then the third bit, and then the LSB bit. At the end of the 4th clock we are having a data available at respective flip-flops, or respective flip-flops we can say, that is readable either if you are reading parallelly, that is available at Q3, Q2, Q1, Q0, or if you want to read it serially, then you'll have to give a 4 again clock to read individually from the Q3 end serially. जब serially read करना है तो पहले आपको आया है MSB, फिर next bit, फिर next bit, फिर next bit, ऐसे 4 क्लॉक फिर से देने पड़ेंगे। तो अब इतना पक्का है कि सीरियल इन सीरियल आउटपुट में जितने नंबर ऑफ स्टेजेस है उसके डबल क्लॉक लगेंगे करके। अगर यही आपको सीरियल इनपुट और पैरेलल आउटपुट लेना होता तो आप कैसे लेते? पैरेलल आउटपुट कैसे लेते? 1100। नहीं, डेटा वहां लेते कहां से? पैरेलली अगर लेते तो वो मिलेगा ही, पर वो 4 क्लॉक के बाद जो मिल रहा था, तो अगर उसी समय पूरे चाहिए डेटा तो कैसे मिलेगा? इस डायग्राम से आपको आइडिया आई। यहाँ पे देखो, ये एंट्री सीरियली किया है, दिख रहा है ये आपको, सीरियल इनपुट है, लेकिन आउटपुट लेते वक्त क्या किया, ये 4 क्लॉक में जैसे 1010 जाना था तो ये पहले 1 यहाँ भेजा है, ऐसे दिखाता हूं मैं, पहले 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, और ये एक शिफ्ट होते होते फिर क्या बन गया, तो बन गया ये कि ये 1 ये 0 ये 1 ये 0। और अगर ये मैं सीरियली आउटपुट लेना चाहता था तो और 4 क्लॉक लेता, लेकिन पैरेलल आउटपुट लेना है तो बस ये जो ऊपर कर दिए सब के सब यही से एट अ टाइम ये डेटा पैरेलली मिलता है। तो पैरेलल का फायदा क्या है, आपके ध्यान में आ गया कि ओनली 1 क्लॉक में आपको पूरा का पूरा डेटा अवेलेबल रहता है, जबकि सीरियल में जितने नंबर ऑफ स्टेजेस है उतने क्लॉक्स आपको लगेंगे। दिस 4 बिट डेटा इज अवेलेबल एट अ टाइम, जस्ट विद इन द फ्रैक्शन यू कैन गेट 1010। अब आपके ध्यान में आ रहा है सीरियल डेटा यानी क्या और पैरेलल डेटा यानी क्या? सीरियल डेटा यानी सिंगल लाइन से आप भेज रहे हैं कि ऐसे ये पूरा डेटा ऐसे इस टाइप से भेज रहे हैं बहुत सारा, और पैरेलल यानी आप 4 अगर बीट है तो आप Q3 का अलग से ले रहे, Q2 का अलग से ले रहे, Q1 का अलग से ले रहे, Q0 का अलग से, तो ये 1 आप बोल सकते हैं कि 1 0 1 0 इस तरीके से। जबकि सीरियल का लेना रहता है तो आप इसी लाइन से पहले 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, यानी इस तरीके से एक क्लॉक के साथ आप रीड करते जाते हैं, समझ रहे? तो 4 क्लॉक एक्स्ट्रा लगते थे, आप लग नहीं रहे, पैरेलली ले रहे, तो उसी टाइम पे आपको यहाँ पैरेलली मिल गया। कहाँ मिल गया? ये 1 ये 0 यहाँ 1 और यहाँ 0। और जबकि सीरियल देते वक्त हमको एक बीट देना पड़ रहा था एंट्री करते वक्त। इस तरीके से मुझे ये बताओ कि सीसो के वक्त हमको 2n
क्लॉक्स लग रहे थे, तो सीपो के वक्त हमको कितने क्लॉक्स लगेंगे, सीरियल इन पैरेलल आउटपुट के लिए कितने क्लॉक्स लगेंगे? देखो 4 क्लॉक दिया तो ये 1010 अवेलेबल है, उसी समय पे पैरेलल रीड कर लो, बराबर है कि नहीं? यानी n क्लॉक्स ही लगेगा। इसका मतलब पैरेलल के वक्त हाफ ही टाइम लगता है, आपको उसी समय डेटा अवेलेबल हो जाता है। ये समझ में आया क्या पैरेलल आउटपुट? यस सर। अभी आपको ऐसे सवाल नहीं है कि ये सिर्फ डी टाइप फ्लिप फ्लॉप दिखाया है, आरएस और जेके रहता तो कैसे रहता? तो ये डायग्राम तो हो गए स्टैंडर्ड। मैं जनरली कैसे बनाता हूँ उसका एक बार आइडिया देता हूँ, फिर वही चीज हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अगर डी रहो या एसआर रहो या जेके, मैं जनरल आइडिया दूंगा, वही आपको काम आ सकता है। कैसे बनाना, सब चीज का स्टैंडर्ड बना के रखो ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं। ये एस या जे, ये आर या के, ये क्लॉक में निगेटिव एजी ट्रिगर्ड ले रहा हूं, ठीक है? और ऐसे ही यहां लगाते जाएंगे। ये 4 मैंने ये लिए हुए दिख रहे हैं आपको, 4 फ्लिप फ्लॉप्स लिए हुए दिख रहे हैं। बस कुछ नहीं करना है इसको, ये जैसे बने हुए मैंने मान के चला है, इसको कैसे जोड़ रहा हूँ ये ध्यान देना बस। कि पहला हमको जो डेटा इन करना है, सीरियल इन अगर है तो इसको एक इन्वर्टर लगा के इसको लगा दिया, इससे तो अपने आप डी बन गया कि नहीं? उससे भी पहला काम सबके क्लॉक कॉमन कर दो, यानी आप इतना सारा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम मिनटों में बना सकते हैं। ये सबके क्लॉक कॉमन कर दो, क्लॉक कॉमन हो गए, आपका डायग्राम भी आपको लगेगा कि आपने कितनी बड़ी चीज बनाई। उसके बाद लेना ये सबके क्लियर कॉमन कर दो, इसको कॉमन करके इसको नाम दे दिया क्लियर, और ये लो एक्टिव है करके मैं इधर दिखा रहा हूँ। सेम वे आप चाहे तो इसके प्रीसेट भी कॉमन कर सकते हैं कि सबके कंटेंट अगर 1-1 करना है तो हम ये कॉमन करके इसको नाम दे दो प्रीसेट, ये भी लो एक्टिव है। तो इस तरीके से अब इसको क्लॉक, इसको इन्वर्टर लगाया, इसको भी तो इसके इस नेक्स्ट स्टेज को भी तो इन्वर्टर लगाना है, लेकिन शिफ्टिंग भी करना है हमको, यानी पहले स्टेज का आउटपुट नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहिए। तो कुछ नहीं, ये क्यू को यहाँ जोड़ दो, रेड से करता हूँ, ये क्यू को इस एस से जोड़ दो और क्यू बार को इससे जोड़ दो, तो यहाँ क्यू आया है, यहाँ क्यू बार आया, मतलब अपने आप इन्वर्टेड हो गया कि नहीं, अपने आप डी टाइप फ्लिप फ्लॉप बन गया कि नहीं। ये इस तरीके से कनेक्ट कर दो, और यहाँ से आपको अगर सीरियल आउटपुट चाहिए तो यहाँ से ले लो। अब इस हिसाब से ये आपका क्या हो गया, S0, J0, R0, K0, Q0, Q0 बार, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, like this, and this will be 3. Okay, so with this you are getting CISO, serial in, serial output. अगर आपको इसको सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट करना है तो कैसे करेंगे, बस यहां से डेटा ले लो, 1, 2, 3 और यहाँ 4। तो ये है हमारा Q0, Q1, Q2, Q3, और यहाँ से जो डेटा मिल रहा है उसको हम बोलेंगे पैरेलल आउटपुट, यानी कि PO। ये SI सीरियल इनपुट, ये पैरेलल आउटपुट यहाँ से, ठीक है? तो आप SR फ्लिप फ्लॉप रहो या JK फ्लिप फ्लॉप रहो या D फ्लिप फ्लॉप रहो, आप ये चीज बना सकते हैं। क्या, शिफ्ट रजिस्टर। और शिफ्ट रजिस्टर में अभी आपने क्या बनाया है, 2 ही चीज, सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट। सिमिलरली सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट। आई होप इट इज क्लियर, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अब पैरेलल इनपुट और सीरियल इनपुट, पैरेलल इनपुट और सीरियल आउटपुट, और पैरेलल इनपुट और पैरेलल आउटपुट कैसे रहते हैं वो देखना है। अभी डेटा पैरेलली इनपुट करना है तो कैसे करना है ये देखना पड़ेगा। तो सिंपल सा डायग्राम अगर मिल जाए तो आपको बताता हूं मैं, अदरवाइज उसके कई वेज हैं, उस पैरेलल इनपुट करने के कई वेज रहते हैं। उसमें से जो मुझे थोड़ा पसंद है वो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। अब मैं पैरेलली इनपुट करना चाह रहा हूँ, ये आपको डायग्राम दिख रहा है? अब लेकिन इसमें ये क्या है, ऊपर जो S लिखा है और नीचे R लिखा है, क्या होगा ये आपके समझ में तो आ गया होगा। S फॉर सेट उसने लिखा है, उसकी कई किताबों के रेफरेंस अलग होते हैं। ये अपना क्या है, प्रीसेट है, ये प्रीसेट है ना, और ये क्लियर है, इसलिए यहाँ रीसेट लिखा है, हम लिखेंगे क्लियर। यहाँ पे क्या किया है, पैरेलल इनपुट करना है तो एट अ टाइम पूरे डेटा देना पड़ता है। पैरेलल का मीनिंग ही है एट अ टाइम। तो यहाँ पे जैसे उसको D3 को 1 देना है, D2 को 0 देना है, D1 को 0 देना है और यहाँ पे 1 देना है। तो एट अ टाइम कैसे देना, तो उसने क्या किया, सभी के एंड जो है उसमें से वो दे रहा है, ठीक है, उसमें से दे रहा है, और इनके सब एंड के एक कॉमन कर दिया। एक एंड
एक इनपुट कॉमन कर दिया, यानी जो काम करेगा कंट्रोल करने के, उसको नाम इसने दिया है लोड। यानी लोड को जब 1 बोलेगा तो यहाँ का जो डेटा है, ये वाला डेटा यहाँ शिफ्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि लोड को 0 करो तो आप देखो किसी भी एंड गेट का अगर एक इनपुट 0 हो तो आउटपुट पक्का 0 रहता है, बराबर है कि नहीं? एंड गेट के ट्रुथ टेबल कैसे होता है? एंड गेट सेज कि ऑल 1 तो ही 1, अदरवाइज 0। मतलब एक भी अगर 0 रहता है तो आउटपुट आपका 0 हो जाता है। इसका मतलब लोड को अगर 0 कर दिया तो ये सब 0 0 हो जाएंगे, कुछ देखेगा ही नहीं वो। तो ये डेटा क्या था इसको देखेगा ही नहीं। इसका मतलब डेटा अगर इनपुट करना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को? लोड इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। मतलब लोड करके बोलना पड़ेगा। लोड को 1 कर दिया तो यहाँ जो डेटा है वो यहाँ अवेलेबल होगा। अब ये कैसे एक्ट होगा जरा उसकी तरफ हम ध्यान देते। तो अब एंड गेट का अगर एक इनपुट 1 है तो दूसरा इनपुट जो रहेगा वही आएगा। यहाँ पे 0 रहा तो 0 आएगा, 1 रहा तो 1 आएगा। ये बराबर है क्या? मेरा कॉन्सेप्ट बताओ बराबर। हाँ, अब यहाँ पे वो सेट के कॉन्सेप्ट से, हाई लेवल के कॉन्सेप्ट से चल रहा था, लेकिन हमारा है लो एक्टिव। प्रीसेट ये लो एक्टिव है, प्रीसेट ये लो एक्टिव है। तो हम एंड न लेकर हम लेंगे नेट। और नेट में हमको मालूम है कि जब भी एक इनपुट 1 होता है, अपने फ्लिप फ्लॉप में देखें तो दूसरे इनपुट को देखता है और जो रहता है उसके यहाँ अपोजिट आता है। इसको 1 है तो यहाँ क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ 0 है तो यहाँ आएगा 1, यहाँ 0 है तो यहाँ आएगा 1, और यहाँ 1 है तो यहाँ 0। अब ये 0 है तो प्रीसेट को 0 देने से क्या होता है? सेट हो जाता है कि नहीं होता है? प्रीसेट को अगर 0 दिया तो वो प्रीसेट होता है, मतलब Q इक्वल टू 1 करता है। ये मालूम है ना? ये ध्यान में आ रहा है? इसका मतलब अगर ये 1 देना था तो यहाँ 0 हुआ, और ये 0 देने से यहाँ 1 आया। तो अपना काम हो गया कि नहीं? ये 0 दिया तो यहाँ 1 आया, 1 आया तो जो इसका पहले का था वही रह गया, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या करते हैं? हम मोमेंटरीली क्लियर देते 0। तो सबके कंटेंट Q3, Q2, Q1, Q0 ये सब 0 हो जाते। और अब हम डेटा एंट्री कर रहे हैं तो 1 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, 0 करेगा तो प्रीसेट को 0 देने से 1 हो जाएगा, यानी 1 का 1 जाएगा और 0 का 0 आएगा। Is it okay? So what I was saying, in order to enter the data parallelly, we have used the preset as an input, and through this preset input we have the NAND gates connected, to which one input is common to all the NAND gates, which we are making it as a enable pin, a preset enable pin. So if I give it a 1, all the NAND gates will be enabled. And now according to the data given, that will be placed at the input of the preset. So what we have seen, if I give the 1, as both input becomes 1, we get a 0 here, and 0 given to the preset, we know it becomes a output as 1, or we say preset. So it means if I enter the 1, I get a 1. Now what happens with the 0? Let us see. If I give the 0, due to this 0, its output will become 1. Why? Because this is 1, this is 0, and here the output will become. When the 1 is given to the preset, it will make no change because it is not going to affect anything. Means what will be the output? So earlier whatever was the output, that it will remain. And we know already at the start of the operation, we clear the content of all the flip-flops by giving a clear momentarily low pulse, or we can say 0, so that all the outputs, whatever is there, that becomes 0. So it means we will get a 0. It is as if I give the 0, I get a 0. If I give the 1, I get a 1. So this is the way the data can be entered or written parallelly. Now if you want to read out serially, you can take from this one, serial output. If you want to read parallelly, so for serial output, you will have to wait for n number of clock periods to get all the data. Whereas in parallel, you just can take the output from this place, this place, this place at the very same instant when you are entering the data. So this is a parallel in parallel output. There is another way to input the parallel. This is the way I have explained by means of preset. There is another way. Let us see that one, so that you should have the idea
दैट हाउ दैट कैन बी डन। अभी आप जरा गौर फरमाओ इस पे कि हमारी जो एंट्री के टीम्स है, मतलब ये डेटा पिन, ये डी और ये, यहाँ तो डेटा डायरेक्टली दे दिया, और इन सब में से जो एंट्री किया है वो एक ऑर गेट में से किया हुआ है। अब इस ऑर गेट में 2 एंड गेट अबव लगे हुए हैं। अब उसका ऑपरेशन अगर अपने को समझ में आ गया तो हमारे बहुत सारे ऑपरेशन समझ में आएंगे। कैसे, एक मैं बताता हूँ आपको, फिर अपने आप समझ जाएगा कि यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 एंड गेट है और इन दोनों के आउटपुट हमने यहाँ पे ऑर किया हुआ है, और ये डी को इनपुट जा रहा है। अब इसमें एक इनपुट तो जो है इसका और यहाँ का, तो ये एक किसी कंट्रोल को दे दिया है, जिसको कि ये अगर जिस कंट्रोल को दिया है, ठीक है, अगर ये जिस कंट्रोल को दिया है उसी का इन्वर्टेड वर्जन दूसरे को दिया है, समझो इसको दे दिया है। इसका मतलब एट अ टाइम एक ही एंड गेट इनेबल रहेगा। सपोज ये मैंने नाम इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको अगर चाहिए तो ये लिखा ही हुआ है शिफ्ट और लोड। इसका एक ही मीनिंग है, यहाँ लिखा है शिफ्ट और दूसरा लिखा है लोड, और लोड में कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो इतना तो पक्का चल गया कि लोड यानी लो एक्टिव है, क्योंकि बार है उसके ऊपर, तो 0 पे सिर्फ डेटा लोड करेगा और शिफ्ट में डेटा शिफ्ट करेगा लेफ्ट टू राइट। तो कैसे करेगा, लेट अस सी। तो एक तो ध्यान में आ गया, ये एक अगर आपको थोड़ा सा इधर ध्यान दिलाओ तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक जोड़ गया है, उसका इन्वर्टेड वर्जन इधर गया है। इसका मतलब जब G1 एक्टिव रहेगा तो G2 नहीं रहेगा, अगर G2 एक्टिव रहेगा तो G1 नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ इन्वर्टर लगा हुआ है ना। अगर ये 1 रहा तो यहाँ 1 आएगा, लेकिन यहाँ 0 आएगा। अगर उसी के अपोजिट यहाँ 0 रहा तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा। इसका मतलब एक कोई तो भी एक्टिव रहेगा मतलब उसके दूसरे इनपुट पर वो डिपेंड करेगा, जो 1 रहेगा उसके दूसरे इनपुट पर डिपेंड करेगा। जिसका भी इनपुट अगर 0 हो जाता है तो उसका आउटपुट 0 आ जाएगा। ये तो पक्का है। एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या है कि इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0, आउटपुट विल बी 0। अब हम देख रहे हैं कि सपोज आई वॉन्ट टू एंटर द डेटा, मतलब यहाँ पहले डेटा एंट्री करना है, तो मैं पैरेलली इन करना चाहता हूँ, फिर मैं सीरियल आउट करूँ कि पैरेलल आउट करूँ, ये बात की बात है। तो इसका मतलब मुझे लोड इक्वल टू लो देना पड़ेगा। अब लोड इक्वल टू लो देते ही क्या होता है, जरा उसको ऑब्जर्व करते हैं। ये देखो लोड यहाँ पे जो है यहाँ 0 दे दिया, ये 0 देते ही यहाँ 1 हो गया। तो कौन सा एंड गेट इनेबल होगा, G2 होगा कि G1 होगा, इवन नंबर के होंगे कि ऑड नंबर के होंगे। तो ये G2, G4, G6 ये इनेबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ सब तो 0 आ गया, ये 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, और 1 कहाँ है, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब बताओ जिसका इनपुट एक भी 0 है तो उसके आउटपुट को देखने की जरूरत है क्या? जिसका इनपुट 0 है उसका तो आउटपुट 0 हो जाएगा, बराबर है? ये 0 है, ये 0 है, ये 0 आ गया। अब इसको देखो, ये जो जिसका 1 बनना है कौन सा, तो जब लोड इक्वल टू 0 है तो G2, G4, G6 इनेबल्ड, और ये एंड गेट है। अब ये इनेबल हो गए तो ये इस पर डिपेंड करेगा, ये B, ये C और ये D, और एक इनपुट है ये A, ये डायरेक्टली गया। अब सपोज जो भी डेटा एंटर करना है, सपोज 1 0 1 0 ये डेटा एंटर करना है, यहाँ 1 दे दिया तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 दिया तो क्या होता है, यहाँ 1, और यहाँ 0 दिया तो क्या होता है। अब आप देखो ये इसके हिसाब से एक्ट करेगा, एक भी इनपुट 0 हुआ तो ये 0 हो गया, ये दोनों 0 है तो यहाँ 0 आ गया, मतलब यहाँ जो चाहिए था 0 वो यहाँ आ गया, और यहाँ जो चाहिए था वो यहाँ आ गया। इसका मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। सेम वे अगर इसको 1 किया, ये दोनों 1 है तो यहाँ 1 आएगा। अब यहाँ एक 0 और एक 1 है तो इसका डेटा आउटपुट क्या आएगा, ऑर गेट में एक 0 है एक 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसका मतलब यहाँ 1 आएगा। तो ये जो चाहिए था 1 वो यहाँ आ गया। सेम वे ये 0 चाहिए था तो ये एक इनपुट 0 होने से ये 0 हो गया, दोनों 0 होने से ये 0 हो गया। इसका एक ही मतलब है कि इस तरीके की अरेंजमेंट में जहां पे 2 एंड गेट रखे रहते हैं और उनका आउटपुट ऑर किया हुआ रहता है, और इनका क्या करते हैं, इसके 2 इनपुट्स जो है, एक इनपुट्स में हम क्या करते हैं कि इसको अगर डायरेक्ट दिया है तो दूसरे को इन्वर्टेड दे देते हैं। इसका मतलब एट अ टाइम एक एक्टिवेट रहेगा, और 2 एंट्री जो करना है तो एक एंट्री यहाँ पे दे देते और एक एंट्री यहाँ पे दे देते। अगर आपके ध्यान में नहीं आया तो पहले हमने अभी सिर्फ लोड देखा है, ये लोड समझ में आ गया क्या कि 1010 अगर मुझे एंटर करना था तो क्या करना पड़ रहा था,
कि आई हैव एंटर्ड और मेड ए लोड बार इक्वल टू 0। जैसे ही यहाँ इनपुट में 0 दिया, ये 1 हो गया। 1 हो गया तो G2, G4, G6 इनेबल हो गए और G1, G3, G5 डिसेबल हो गए। जो डिसेबल हो गए उसके आउटपुट 0 है, ये सब आउटपुट 0 है। अब जो इनेबल हो गए वो डिपेंड कर रहे हैं कि आप उसके एंट्री में क्या दे रहे हो। 0 दोगे तो 0 आएगा, 1 दोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब वो लोड के काम कर रहा है। जैसे ही लोड को आपने लोड दिया, जो भी डेटा है वो लोड रहा है। अब देखते हैं कि शिफ्ट कैसे करते हैं। अब शिफ्टिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। मैंने डेटा शिफ्ट कैसे करता है, ठीक है। तो हाँ, चलो अब दूसरी कोशिश करते हैं कि हम ये जो शिफ्ट है ये 1 की है तो क्या होगा। अभी डेटा शिफ्ट होता है क्या, मान के चलो कि अभी यहाँ पे ये 1 0 1 0 एंट्री हो चुकी है, लोडिंग का काम पहला वाला हो चुका है और हम चाह रहे कि डेटा शिफ्ट हो। तो शिफ्ट हो तो हमने क्या देना पड़ेगा यहाँ पे 1। ये सब 1 कहाँ आएंगे, अब ये G1 को आएगा, ये G3 को आ गया, ये G5 को आ गया, G1 G3 G5। इसका मतलब क्या इनेबल होंगे, G1 G3 G5 ये एंड गेट इनेबल होंगे। और क्या डिसेबल होंगे, G2, G4, G6। ये सब डिसेबल हो जाए। जो डिसेबल हो गए ना उसके तो आउटपुट आपके 0 हो गए, उसके आउटपुट 0 हो गए। आप पहले से डिक्लेयर कर सकते हैं कि इसके आउटपुट 0 हो गए, इसका आउटपुट 0 हो गया, इसका आउटपुट 0। और जिसका इनपुट 1 है वो उसके दूसरे इनपुट पे अब डिपेंड करेगा। उसका क्या इनपुट है, ये इनपुट क्या है, ये इनपुट क्या है, ये इनपुट क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। अब मुझे बताओ, जैसे ही हमने इसको 1 दिया और अभी क्लॉक मिली तो ये जो 1 है वो यहाँ आएगा कि नहीं इनपुट में। यहाँ जो 1 है वो इसके इनपुट में आएगा, दोनों 1 है करके यहाँ आएगा, ये 0 1 है करके यहाँ 1 आएगा। इसका मतलब ये 1 जो डेटा है वो यहाँ शिफ्ट होगा कि नहीं। Yes, sir. वैसे ही ये 0 यहाँ से ये 0 यहाँ आएगा, ये 0 होने की वजह से ये 0 होगा, दोनों 0 है तो यहाँ 0 आएगा और ये 0 यहाँ एंटर करेगा। इसका मतलब यहाँ का डेटा यहाँ ट्रांसफर होगा। सेम वे यहाँ का डेटा यहाँ ट्रांसफर होगा। तो ये शिफ्ट कर रहा है ना, ये शिफ्ट कर रहा है राइट साइड, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहा है। सो इस ऑपरेशन में हमने क्या देखा, पैरेलल इन भी देखा यानी लोडिंग के मार्फत, और हमने सीरियल आउटपुट शिफ्ट के तरीके से हमने ये भी देखा। वी कैन एंटर द डेटा पैरेलली एंड वी कैन टेक द डेटा सीरियल। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। इसी का ना अब एक बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर रहता है। तो बाय डायरेक्शनल क्या रहेगा कि दोनों तरह से हो, दोनों साइड में हो। ये कुछ नहीं, इसी का थोड़ा सा अलग वर्जन या दोनों को मिला दिया।